So hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start with chapter number 2 of class 7, Nutrition in Animals. In the last lecture we finished off with nutrition in plants. So we have successfully completed our chapter number 1 of class 7. I explained you that chapter very well. Okay, we covered that in 3 lectures. You can go and watch those videos. It is there on this channel only. Now, as we studied about nutrition in plants, that how plants, make the food, we studied about photosynthesis and how do they acquire their food. In this chapter particularly, we are going to study about these contents. Okay, so firstly we will study about nutrition in animals, introduction and definitions. You know what, I have already explained you this thing in previous videos in first lecture. Abhi I will explain again, and you can actually make out that I already explained you this thing very well. But yes, we will unfold more layers to it. Different methods of taking food, digestion in humans. So this is going to be a very interesting chapter for all the biology lovers, because in this we will actually study about human biology. Then human digestive system, digestion in grass eating animals, which are also known as ruminants. We will study about them, and digestion in amoeba. Now, just like previous chapter, I will also try to wind up this chapter in 3 videos. But remember, bache, I just do not focus on completing the chapter, but also that you understand it very well. So even if if in case the videos extend a bit long, then please don't mind about that, because my main motive is that you understand your concepts, and I actually keep repeating each thing twice or thrice in the lecture. That is why the duration of the lecture extends. Besides, I also bring beautiful diagrams. You remember I explained you this diagram of stomata and leaf anatomy and photosynthesis. So many diagrams we have studied in previous chapter, and so many pictures were there. Today, in this particular lecture, now let's talk about this chapter. Previous is over. We will study first 3 topics. Okay, so let's start. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, सो इट्स अ फ्रेश पेज. नाउ मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पहला टॉपिक ऑलरेडी पहले कवर करा है. कैसे? यू रिमेंबर इन द फर्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू समथिंग कॉल्ड एज nutrients, and I told you that nutrients are nothing but they are the food components. And what are those food components? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Then I also explained you something called as nutrition, and I told you कि हम ये chapter 2 में डिटेल में पढ़ेंगे. और मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग टेकिंग इन प्लस यूजिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसी दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूट्रिशन. एक्चुअली ना न्यूट्रिशन की यही डेफिनेशन है. एंड फन फैक्ट इज, आपने ऑलरेडी न्यूट्रिशन के बारे में पिछले लेक्चर में मुझसे सीख लिया है. बट थोड़ा सा हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा था. अब हम थोड़ा इसको डिटेल देखते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो न्यूट्रिशन, सो सॉरी, तो मैंने बोला कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? टेकिंग इन फूड प्लस यूजिंग इट. यूटिलाइजेशन किस चीज के लिए? फॉर मैकेनिकल प्रोसेसेस इन बॉडी, और यू कैन से मैकेनिज्म्स इन बॉडी. मैकेनिज्म्स इज अ गुड वर्ड, बिकॉज इसमें 2 टाइप के मैकेनिज्म्स आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. नाउ एक्चुअली ना ये तो एक डेफिनेशन है, बट हमने क्या करा है न्यूट्रिशन को और समझने के लिए, वी हैव actually classify nutrition
इनटू सर्टेन पार्ट्स, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, हमने इसको स्टेप्स बना दिए. पहला स्टेप है इंजेशन. Don't worry, I will explain each step. Second step is digestion. Third step is absorption. Fourth step is assimilation. And the last step is egestion. Actually, yes, अब आप देखना, ये जो डेफिनेशन है ना, टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन, दिस इज बेसिकली द क्रक्स और द समरी ऑफ ऑल दीज 5 स्टेप्स. अब हम इन 5 स्टेप्स को समझेंगे, यानी बहुत सिंपल है. आपको मैं समझाती हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू वाया अ स्टोरी. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन. यू नो दैट ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड. कब से हम यही सुन रहे हैं, राइट? क्यों चाहिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था. बेसिक क्लेम एंड क्या बोलेगा, फॉर एनर्जी. But I told you that we need it for many other things in our body, right? So the process, ये देखो, taking in food and utilizing is called nutrition. ये definition we have already studied in our chapter 1. अब मैंने आपसे बोला कि न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में होता है. ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. It's very easy. So imagine that you are this, you know, beautiful girl or this beautiful boy, and you are actually eating lunch. And आज lunch में बना है, let's say, your whatever favorite food you like. Just imagine, like I like rajma rice, let's say. Okay, so first step is ingestion. Ingestion क्या होता है? As you sit on your dining table and you eat that first bite of your favorite food, आप खाने को अंदर लेते हो वाया व्हाट, योर माउथ. तो इंजेक्शन में ऑब्वियसली माउथ. और माउथ का दूसरा नाम क्या होता है? बक्कल कैविटी. अब ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं. whosoever wants to become doctor in future, उनको तो ये सीखने ही ज़रूर चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, इनका मतलब है अंदर लेना. ठीक है, तो जब आप when you take the food in via your mouth, that process of taking food is called ingestion. याद है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. तो फर्स्ट स्टेप समझ आया. नेक्स्ट इज डाइजेशन. अब डाइजेशन भी ना मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कहीं समझाया था, बट डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है ना, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. सी, जब भी वर्ड डाइजेशन आता है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन. आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने एक पिज्ज़ा का एग्जांपल दिया था. आप पिज्ज़ा खाते हो, बट यू नो न्यूट्रिएंट्स तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स हैं. जब ये पिज्ज़ा हमारी बॉडी में जाता है ना, तो हम इस पिज्ज़ा को अच्छे से ब्रेक करते हैं एंड वी टेक आउट आर न्यूट्रिएंट्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या है? कोई भी, अब ये जो पिज्ज़ा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फूड. हमारी बॉडी पिज्ज़ा अब्सॉर्ब नहीं कर सकती. पिज्ज़ा को यूज़ करके एनर्जी नहीं आती. पिज्ज़ा के अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको यूज़ करके एनर्जी आती है. तो हमें पहले इसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना है. इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे हम हमारी ग्रोथ के लिए. ठीक है, सो डाइजेशन ही यही है. द फूड कंटेनिंग लार्ज सब्सटेंसेस इज सी ब्रोकन डाउन. जब भी वर्ड ब्रेक आ जाए, डाइजेशन, इनटू soluble substances which can be absorbed. मैंने बोला ना, पिज्ज़ा कैन नॉट बी absorbed by your body, बट उसको ब्रेक करेंगे हम, और ब्रेक करके वट एवर स्मॉलेस्ट थिंग्स वी आर गेटिंग, दैट वी विल एब्सॉर्ब. सो इससे मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन और देती हूँ. मैंने आपको बोला कि वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स. सॉरी, देखो, पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी,
तो बॉडी क्या करेगी, पिज्ज़ा को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स पिज्ज़ा में होते हैं अगर आप वेजिटेबल पिज्ज़ा खाओ, बिकॉज वेजिटेबल्स में विटामिन मिनरल्स होते हैं। पर पिज्ज़ा के अंदर ये सब तीनों चीज़ें होंगी। प्रोटीन किस में होगा, चीज़ में होगा। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स तो यू नो इट, ओके। बट एक्चुअली क्या होता है ना, बॉडी इसको और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको कितनी बार बताया था कि प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो बॉडी क्या करती है ना, छोटे से छोटी चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो एब्जॉर्ब इजी हो। बेसिकली अब एक बड़ी बाइट खाओगे, इट इज़ डिफिकल्ट। दैट इज़ वाई डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, च्यू योर फूड प्रॉपरली, ब्रेक इट इनटू एज स्मॉलर पार्ट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन एक बहुत छोटा सा सेल होता है, एंड वो सेल इट इज़ टाइनी सेल, वेरी टाइनी सेल। सो फॉर इट टू एब्जॉर्ब इफेक्टिवली हम छोटे से छोटे चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बॉडी कोशिश करती है कि जितने छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सके उतना अच्छा है। सो पिज्ज़ा को फर्दर कन्वर्ट किया इन तीनों में, और फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को और छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, फैट्स को और छोटे। आप ये टर्म्स याद रख सको तो रख लो, अदरवाइज डोंट नीड टू रिमेंबर, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, बट जस्ट टेलिंग यू कि कार्बोहाइड्रेट से भी छोटा होता है ग्लूकोज। तो बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। फैट से भी छोटे होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलके फैट्स बनाते हैं। एंड प्रोटीन से छोटा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस जो है ना, ब्रेकिंग ब्रेकिंग जहाँ पे भी है उसको कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अब बॉडी इसको अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। तो प्रोसेस इन विच दिस फूड गोज, और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली हम पूरा ह्यूमन डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल। सो आई ब्रॉट दिस ब्यूटिफुल video and clip also for you. Actually it is trying to show you a bit कि कैसे absorb हो रहा है। If you can see, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, but देख रहे हैं छोटे छोटे particles here, they are basically the food। अब देखो कितने छोटे bits में convert करती है हमारी body। So it is just trying to get absorbed। और ये जो सारा एब्जॉर्प्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना, जैसे मैं अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, इट्स इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें ऐसे सेल्स होते हैं, और सेल्स ऐसे शेप के होते हैं, तो कुछ भी चीज़ आती है तो इसके अंदर ऐसे चली जाती है। तो खाने को अब्जॉर्ब करना इन इंटेस्टाइन वॉल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज असिमिलेशन। याद है मैंने बोला था कि यूटिलाइज भी करना है, तो अब इसी फूड को हम यूज़ करेंगे हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। देखो इसकी हाइट ग्रो हो गई, फॉर वर्किंग, टू बी हेल्दी, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, देर आर सर्टन ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है यहाँ पे मेडिसिन्स। आप जनरली मेडिसिन्स खाओ ना, मेडिसिन्स हमारी बॉडी में उनका एक अलग मैकेनिज्म होता है, उसको बॉडी एज इट इज फ्लश आउट कर देती है। अदरवाइज जैसे होता है ना, आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती एंड यू इंस्टेंटली हैव टू गो टू वॉशरूम। तो कुछ भी जो अनडाइजेस्टिव फूड है जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है ड्यू टू सम रीज़न, इज कॉल्ड ईजेशन। आजकल कितना फास्ट फूड हो गया, राइट। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देखो डेफिनेशन क्या थी, टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग, एंड उसको ये पूरी जो डेफिनेशन, इट्स क्रक्स ऑफ ऑल दीज 5 पार्ट्स। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। So we finished off with the first topic. Second topic is different methods of taking food. अब आप और मैं, we have our mouth and we have our hands, right? हम हाथ से खाना अपने मुंह में डालते हैं, बट बाकी एनिमल्स का ऐसा नहीं है। उनका एक तरीका है लेने का, और उनका फूड क्या है। और ये आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटिफुल टेबल, आप ये टेबल कर लो, कोई भी आता है एनिमल यू कैन इजीली आंसर। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है आपको एक्टिविटी फॉर्म में, विच यू हैव टू फिल। सो आई हैव ब्रॉट ऑल द आंसर्स। फ्रॉग, लिजर्ड, कैमेलिन, ये लोग क्या खाते हैं, इंसेक्ट, एंड द मोड इज टंग।
फ्रॉक की जो टंग होती है ना वो आगे से ऐसी होती है, इसे कहते हैं क्लेफ्टेड टंग। ओके। बटरफ्लाई, बीज, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। आपको पता है ना कि ये जो बटरफ्लाई होते हैं इट लाइक्स द नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर, it's a sweet juice present in the flower, and I have brought the video, you can see it has this kind of a tube, butterfly, और इनके पास भी that is called sucking tube, तो वो suck करती है। मस्कीटोज, मस्कीटोज ब्लड सक करते हैं। मच्छर, इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, मदर्स मिल्क। लाइस, जू, लास्ट टाइम बताया था ये भी ब्लड सक करती है, सी हेयर स्कैल्प। हाउस फ्लाई, ये भी है, हाउस फ्लाई क्या होती है? मक्खी in Hindi we say, you know, which sits on your food. Filth, filth means waste, तो इनके पास भी कुछ सकिंग ऑर्गन्स होते हैं। एंड्स, एंड्स को देखकर चींटी खाती है, बाइट और च्यू करती है वो। स्नेक, स्नेक के पास टीथ नहीं होते हैं, स्नेक क्या करते हैं? स्वॉलो करते हैं, निगलता है सीधा। ईगल, ईगल के पास एक पीक होती है, ये टीयर करती है अपना फ्लैश। ओके, दैट इज अ शार्प पीक से। अमीबा, अमीबा वी विल स्टडी इफ यू नो अमीबा, सम पीपल गुड। अगर आपको नहीं पता तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, आपको ऐसे ही चलता फिरता नजर नहीं आता अमीबा जैसे आपको स्नेक ईगल नजर आते हैं। ओनली यू कैन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप, और इसकी कोई शेप नहीं होती फिक्स्ड, कभी कभी ये ऐसा है कभी ये ऐसा है, यू मेक एनीथिंग एंड दैट इज अमीबा। तो इसका जो मोड है सूडोपोडिया, इसकी जो एक पर्टिकुलर एक शेप बनाता है, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। वी विल स्टडी दिस। और हम ह्यूमंस, हैंड्स एंड माउथ। सो सी आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। अब ये देखो फ्रॉग, कैन यू सी टंग निकाल के कैसे अंदर। ये एक स्नेक है, इफ यू सी ना स्नेक इसको सीधा निकल रहा है, दिस इज अ रैट। So these are a beautiful visuals which I means you know very less teachers will show you. This is an American eagle बच्चे, and if you can see इसकी beak कितनी sharp है, और ये flesh है इसके मुंह में। So this is an American eagle. Okay, now see the butterfly. I told you butterfly. Can you see this? मुंह से कुछ निकल रहा है, ये है वो sucking tube। ये तो इसके feet हैं और ये ant है। Oh, this is our amoeba. I have bought amoeba also. अमीबा के बारे में सस्पेंस रखे, यू नो वी विल स्टडी दैट, इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। ओके, एक स्पेशल केस है स्टारफिश का। स्टारफिश ना बहुत स्पेशल है एक्चुअली, यू वुड बी अमेज्ड टू नो। स्टारफिश आई होप एवरीवन नोज लाइक दिस, ऐसा एक होता है ऑर्गेनिज्म। स्टारफिश जनरली ना उसका जो खाना होता है एनीथिंग विच हैज़ अ शेल। शेल पता है, जैसे एक टर्टल का शेल होता है, और ये जो शेल बना होता है, इस शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड CaCO3। तो ये क्या करती है स्टारफिश, ये पहले तो ये सी में रहती है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखती है जिसके ऊपर शेल होता है, ये उसका शेल खत्म करती है। लेट्स से दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, लेट्स मेक इट विद रेड। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये लेट्स से सो सॉरी आई डोंट हैव मोर मार्कर्स है। और ये इसका शेल है। तो ये क्या करेगी, ये सबसे पहले आती है और इसका शेल खत्म कर देती है। यू नो शेल इज अ लाइक अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, इट्स प्रोटेक्शन। तो अगर आप किसी की प्रोटेक्शन खत्म कर दो तो उसको खाना इजी है। तो ये इसका प्रोटेक्शन खत्म करेगी। ये खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सो सॉरी, सो सॉरी। अब ये खत्म कर दिया। इसके बाद क्या करती है ये शेल्फ, स्टारफिश जो होती है ये अपना स्टमक, आई हैव ब्रॉट द फोटो जो बार बार आ रही है, इट टेक्स आउट वाया इट्स माउथ। कैन यू बिलीव दिस? ये अपने स्टमक को अपने माउथ वाया बाहर निकालेगी,
एंड दैट स्टमक विल कम आउट एंड एनगल्फ इट। तो ये स्टमक फिर इस ऑर्गेनिज्म को खा लेगा एंड इट विल गो इनसाइड। तो ये लिटरली अपने मुंह से अपना स्टमक बाहर निकालती है। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। यू कैन गो एंड सी सम वीडियोज ऑन यूट्यूब। आई ट्राइड गेटिंग सम, बट मुझे कोई अच्छी मिली नहीं। आपको मिले तो प्लीज़ forward me the link so that I can share with the rest of the students also. So starfish, it feeds on sea animals which are covered by hard calcium carbonate. Can you see this is starfish and these are the shelled animals. सबसे पहले ये शेल ओपन करती है, फिर ये अपना स्टमक बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ, और फिर इसका स्टमक क्या करता है, ये ऐसे ऐसे उसको अंदर ले लेता है और फिर ये उसको अंदर ले लेती है। सी, कैन यू सी कैसे इसने अपना स्टमक बाहर निकाला है? See the videos, it's very interesting. Okay, so the last part of our chapter is digestion in humans. मैंने आपको ना अभी एक्चुअली आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दैट, अभी मैंने आपको डाइजेशन समझाया। आई टोल्ड यू ना कि कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इज फर्दर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक यूनिट को हम कहते हैं ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज बन के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्रोटीन की एक यूनिट को क्या कह रहे हैं हम? अमीनो एसिड। तो डाइजेशन जब भी आता है उसका वर्ड है ब्रेकिंग। तो हमें क्या करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट की ये यूनिट्स को तोड़ना है एक एक ग्लूकोज से, तो फिर हमारी बॉडी एक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी। प्रोटीन को इस चेन को तोड़ना है, यानी सिंगल सिंगल अमीनो एसिड चाहिए। लिपिड का दूसरा नाम होता है फैट। तो बेसिकली इसमें ये जो है बच्चे, ये होता है फैटी एसिड और ये होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, दीज चेन्स, सॉरी आई जस्ट सेड दैट इन्वर्टेड। फैटी एसिड की ये चेन होती है फैटी एसिड की, और ये होता है ग्लिसरॉल, और ये है न्यूक्लिक एसिड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए आरएनए, इसको भूल जाओ। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, दे आर ऑल्सो वेरी मच कॉम्प्लेक्स। ओके, सो डाइजेशन वर्ड जब भी आता है उसका मतलब होता है ब्रेक करना। अब हमारी बॉडी में इन ह्यूमंस डाइजेशन हैपन्स इन टू वेज। फिजिकल डाइजेशन होता है और एक होता है केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन को हम टुगेदर कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकली कैसे होता है डाइजेशन? बेसिकली जैसे हमारा माउथ है, तो हमारे माउथ के अंदर जब हम फूड लेते हैं तो हमारे टीथ सबसे पहले खाने को ब्रेक करते हैं। इसे कहते हैं फिजिकल मेथड विच इंक्लूड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। एंड केमिकली क्या होता है, पेट के अंदर जब खाना जाता है इन स्टमक कुछ जूसेस निकालता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए डाइजेशन इन ह्यूमंस इज, सो विल से इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हम डाइजेशन इन ह्यूमंस थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली इन क्लास 7 नथिंग मच इज गिवन एक्सेप्ट आपको बस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट। मैंने आपको थोड़ा बताया ही, देखो अभी। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? सी, यू वुड हैव सीन दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, ऐसे साइंस के अंदर ऐसे 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 करके बनाते हैं, राइट? लाइक दिस। थिंक आई वोंट बी एबल टू मेक। कैन यू सी हेयर कि मैं यहाँ पे एक सिंगल ट्यूब बना रही हूँ और मैं इसी ट्यूब को फोल्ड कर रही हूँ। कि हम ऐसे बनाते, चलो। अगर आप देखो मैंने क्या करा है, मैंने कुछ अलग से कुछ वेरिएशन डाला। मैं एक ही ट्यूब को ऐसे 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 से कर रही हूँ। ये जो एक सिंगल ट्यूब है ना, जिसको हम बहुत प्यार से डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक ट्यूब है। और इस ट्यूब में वेरिएशन है, कभी ट्यूब सीधी है, कभी ट्यूब मुड़ गई, अब फिर से सीधी हो गई, और इसमें ऑर्गन्स हैं। तो इट्स अ 8 to 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, और इस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है? इट्स अ पैसेज, इट्स अ ट्यूब।
तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब है, और ट्यूब का सबसे स्टार्टिंग पार्ट कहाँ से आता है, माउथ से, और लास्ट इज एनस, ठीक है, इन विच सारे प्रोसेसेस होते हैं। डाइजेशन बीच में आएगा, डाइजेशन स्टमक में होगा। ये देखो, ये ट्यूब ऐसे ऊपर की तरफ है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये वाला एरिया। इसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था ना एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल को ही हम गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब कहते हैं। एंड इट इज 8 to 9 meters लॉन्ग इन ह्यूमंस। यू गेट दैट? तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज नथिंग बट अ ट्यूब, अ होल ट्यूब। ओके, इस ट्यूब को ही somewhere it is straight, somewhere it's convoluted, somewhere it is an sigmoid, somewhere it is C shaped। जैसे ये ट्यूब अब स्टमक के अंदर आके ऐसे J शेप हो गई है, इसलिए स्टमक को बोलते हैं J शेप ऑर्गन। यहाँ पे देखो तो एक C बन रहा है, इसलिए इट्स सी शेप। तो ये ट्यूब है बस। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या ट्यूब है। बट एक और डायग्राम में लेकर आई हूँ, ध्यान से देखना। ये ट्यूब है, मैं ट्रेस कर रही हूँ ट्यूब। दिस इज आवर माउथ। अब देखो ये ट्यूब है सारी, यहाँ पे स्टमक आ गया, कलर अलग है। फिर उसके बाद ये सारा ट्यूब है। कैन यू सी दिस थिंग? ये अलग से जोड़ा है, ट्यूब ऐसे ऐसे ऐसे, उसके साथ यहाँ पे अलग है। तो ये ट्यूब का पार्ट नहीं है, ये अलग है। एंड दिस इज एक्चुअली लिवर। ओके, तो बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ट्यूब तो है, ये एलिमेंट्री कैनाल तो है, प्लस कुछ ग्लैंड्स भी हैं जिन्हें हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो इस ट्यूब के साथ एसोसिएटेड है। और ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लिवर जो अभी आपने देखा, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इस डायग्राम के अंदर, लेट मी शो यू, नॉट वेरी क्लियर डायग्राम, सो आई ब्रॉट अ मोर क्लियरर ऑल्सो जस्ट टू हैव समथिंग। बट बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें नज़र आते हैं। सबसे पहले ये आपका माउथ है, ठीक है, और ये देखो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है ये सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप। ये स्टमक है, कैन यू सी योर स्टमक? उसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे देखो ये है लिवर, तो लिवर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और लिवर के नीचे से ना यहाँ से ऐसे ये ऑर्गन निकलता है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर का। फिर देखो यहाँ से साइड में आती है स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। और बिल्कुल स्टमक के इधर एक ऐसा ऑर्गन होता है, ये दिख रहा है येलो शेड, येलो कलर का, दैट इज पैनक्रियास। ब्यूटीफुल डायग्राम इज दिस, सी ये लिवर है, ये जो है ना ये ट्यूब, ये स्टमक से ऐसे कनेक्ट होगी, यहाँ पर होगा इसका स्टमक ऐसे। ये है पैनक्रियास और ये है गॉल ब्लैडर। तो ग्लैंड्स कौन से हैं? लिवर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत बड़ा होता है ये। तो यही लिखा है एलिमेंट्री कैनाल इज कंटिन्यूअस कैनाल, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस इज फूड पाइप, है ना, ये हमारा माउथ है, मैंने बताया ना फूड पाइप। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम जो है बच्चे, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन एनस। डोंट नॉट वरी अगर आपको ये नाम ना याद हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सब याद करा दूंगी। और 3 ग्लैंड्स आपको पता होने चाहिए, लिवर मैंने आपको दिखाया, पैनक्रियास, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर ही होता है। सो आई विल ब्रिंग पिक्चर्स एंड वी विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड। अब ये ट्यूब है, जैसे मैंने खाना खाया या आपने खाना खाया, अब ये खाना अंदर कैसे जाता है? ऐसे ही नहीं जाता सीधा सीधा, क्योंकि ट्यूब देखो कभी ऐसे कभी ऐसे। हमारे ना यहाँ पे मसल्स होते हैं कंटिन्यूसली, और ये मसल्स क्या करते हैं, इफ़ यू सी दिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर खाना नीचे गया, फिर रिलैक्स किया, ये रिलैक्सेशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली फूड कभी कॉन्ट्रैक्टेड है, कभी रिलैक्स्ड है। तो मसल्स ऐसे मूव करते हैं। अभी आपको भी अगर चलना है ना,
योर लोकोमोटरी मसल्स हेल्प यू, दैट आर स्केलेटल मसल्स, पढ़ा है क्लास फिफ्थ। इवन इफ यू वॉक, कोई भी बॉडी में एक्टिविटी होती है ना, हर एक्टिविटी के लिए मसल्स चाहिए। तो हमें खाने को मूव कराना है, उसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हेल्प करते हैं। सो इस प्रोसेस को कहते हैं हम पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, जिसके अंदर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इट इज कॉज्ड बाय द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ताकि खाने को हम नीचे पुश करें। पहले खाना माउथ में आता है, उसके बाद वो आता है फूड पाइप में, उसके बाद वो आता है स्टमक में, उसके बाद वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में आता है एनस। ठीक है। और खाना कैसे पुश होता है? वाया द मसल्स। So this is it for today. Thank you everyone for attending this lecture. I hope I was able to deliver my content successfully to you all. Any doubts, any suggestions, please comment down below. Thank you and have a good day. We will come back with a new video, and in the next video I will explain you particularly human digestive system, each organ we will take. बहुत आराम से हम humans के बारे में समझेंगे। तो anything you want me to reply to you, so yeah, comment down below.